A very good afternoon. Very good afternoon, everyone. Once again, I accord a very warm and cordial welcome to you all in this 7-day mental health awareness and wellness workshop being organized from Ramdas B.Ed College under the leadership of Dr. Sarabjit Kaur in collaboration with Sant Darbara Singh College of Education for Women Lopo, Kenway College of Education Abohar, JD College of Education Buxar, Guru Gobind Singh College of Education Theri, Malot. First of all, I'd like to present summary of day 1 and day 2 of the workshop. On day 1, we heard about stress management and learned a lot about how to relieve ourselves from stress of our daily and how to keep ourselves calm. activities and how to keep ourselves calm and healthy. In which we learned a lot. On which we learned a lot that psychosocial problems leave a lasting effect on adolescents' life and they should not be taken lightly or ignored. Today we'll listen about understanding depression and helpful thinking patterns. Today we'll listen about understanding. Now I would like to hand over the platform to Dr. Natasha Kheda, the most eminent speaker for understanding depression and helpful thinking patterns. Over to you. Talk on understanding depression and Thank you so much, ma'am, for your heartfelt support, and a very good morning to everyone. I hope today's session is going to be extremely beneficial and fruitful for everyone. Today, we are going to discuss something. Please give me a minute. Let me share my screen. Ma'am, can you please give me the... I cannot share my screen because then the settings are disabled for participants. Can you please give me access to that? Just one. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just a minute. मैम एक बार उनको बुलाना, नेहा मैम। हो गया वो मेल को पोस्ट करना वो Before I start the presentation, it is my request to everyone if you can please switch off your audio so that whatever we are discussing can reach out to everyone and we do not have any disturbance during the presentation. So today what we are going to discuss बहुत ही pertinent और बहुत ही relevant topic है, and although depression एक ऐसा topic है जिसकी prime importance today उसका रीजन ही उन्होंने, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा होगा डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। क्या मतलब है इस वर्ड का? इसका मतलब यह है कि वर्ल्ड वाइड वो कौन सी ऐसी फिजिकल और मेंटल इलनेसेस है जिनकी वजह से हमारे यहाँ पे वर्ल्ड वाइड लेवल पे हर कंट्री में मोस्टली लोग अपनी बहुत सारी ईयर्स इलनेस में
निकल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोगों को अल्कोहलिज्म है या जैसे लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आजकल यंग लोगों में भी बहुत जल्दी स्ट्रोक की कंप्लेन आ रही है। ऐसे ही बहुत सारे और इलनेसेस हैं जिसकी वजह से लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, उनकी बीमारी में बहुत साल बहुत वो इसी बर्डन को, हेल्थ बर्डन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाती है। तो एक स्टडी में उन्होंने ये एक्चुअली एनालिसिस किया और उन्होंने बोला कि बाय द ईयर 2020 जो डिप्रेशन होगा वो वर्ल्ड में हाईएस्ट रीजन फॉर डिसेबिलिटी होगा। इवन हार्ट डिजीज को, अल्कोहलिज्म को, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को, लंग कैंसर को, हियरिंग लॉस को, और हम अगर डिमेंशिया अल्जाइमर का जो ओल्ड लोगों में 65 के बाद मेमोरी लॉस शुरू की 22 में है। उस टाइम किसी को पता नहीं था कि कोविड पैंडेमिक हो जाए। Ma'am, you have muted yourself. Audio is not available. Am I audible now? Yes, ma'am, now audible. Ma'am, you could not hear anything that I said in the last 5 minutes? No, it was just for a few seconds only, ma'am, from last 30 seconds. Okay, okay, then it's fine. ठीक है जी। तो हमने what I was discussing was कि जो कोविड का पैंडेमिक आया, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने इसको कंट्रीब्यूट किया। वैसे भी बाय द ईयर 2020 डिप्रेशन हाईएस्ट रीजन ऑफ डिसेबिलिटी होने वाला था। इन एडिशन टू दैट व्हाट हैपेंड वाज दैट बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक बहुत सारे लोगों का रिसेशन हुआ, पीपल वर लेड ऑफ, उनकी जॉब चली गई। बहुत सारी कंट्रीज में वैक्सीन इनिशियली फर्स्ट 1 ईयर अवेलेबल नहीं थी। डेल्टा वेरिएंट में डेथ बहुत ज्यादा हुई है, फैमिली में ग्रीफ बेरीजमेंट बहुत ज्यादा था। लोग लॉकडाउन में घर में थे, उनकी वैसे भी डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ गया, सुसाइड आइडिएशन बढ़ गया। आपने देखा होगा कितने सेलिब्रिटीज ने भी सुसाइड कमिट किया, विच इज अनफॉर्चुनेट। रीजन बीइंग कि डिस्पाइट बीइंग एजुकेटेड, ये अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस लोगों में आज भी नहीं है। हमारी कंट्री में तो मैक्सिमम स्टिग्मा है। आप देखेंगे इस कंट्री में अगर किसी को रूरल एरिया है, एक हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लेबलिंग होती है कि बहुत के पास चले जाए, मंदिर, दरगाह, मस्जिद चले जाएंगे, या किसी और जगह पर उनको लगता है भूत प्रेत का खाया है, बट वो साइकाट्रिस्ट के पास नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस बहुत कम है, लोगों को पता नहीं है कि साइकाट्रिक इलनेस होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे ये जो हम 7 डेज का वर्कशॉप कर रहे हैं, एक मेंटल हेल्थ लिटरेसी और हाइजीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि स्वच्छ भारत का हम इतना ज्यादा जोरों शोरों से अभियान चला रहे हैं, हम अपने मानसिक जो हमारी स्वच्छता है या जो हमारी हेल्थ को हमें इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली उसके टुवर्ड्स हमारी गवर्नमेंट की अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है, लोगों की अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है, ताकि कल को जो लोग घर में रह के सुसाइडल है वो साइकाट्रिस्ट के पास जाएं और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। अगर किसी भी जो फॉर्म में आप लोगों के आसपास कोई ऐसे लोग हैं जिनमें इलनेसेस आई होप जनरेटेड थॉट से अप्लाई करने के लिए एंड एक अवेयरनेस, एक कम्युनिटी लेवल पे, एक सोशल लेवल पे भी अवेयरनेस ड्राइव की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले हम ये शुरू करते हैं कि अगर एक पर्सन को डिप्रेशन है, क्या एक साइकाट्रिस्ट, क्या वो कॉमन सिम्टम्स है जो साइकाट्रिस्ट रिपोर्ट करेगा? अनफॉर्चुनेटली आई थिंक देयर इज अ लाइन दैट आई कैन सी यहाँ पे स्क्रीन पे। आई होप इट डजंट अफेक्ट इट। आई थिंक किसी का स्क्रीन शेयरिंग हो गया है, बट ओके। तो आई विल ट्राई कि अगर ये दोबारा से I'll try and screen again ताकि हम इसको हटा सकें। 1 सेकेंड। ओके, तो बहुत सारे साइंस और सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि मेडिकली हमारे यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोटोकॉल बनाया है जहाँ पे कि हम लोगों को डायग्नोज कर सकते हैं।
जैसे अगर किसी को मलेरिया है, टाइफॉइड है, कोविड है, तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। सिमिलरली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन साइकाट्रिक ऑर्गेनाइजेशन ने भी हमारे यहाँ पे एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया दिया है टू डायग्नोज पीपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्रेशन में क्या इफेक्ट होते हैं? ऑफ कोर्स हमारे इमोशन, सैडनेस, मन खराब रहता है, आपको घबराहट, एंजाइटी रहेगी। अच्छा, देखा गया जैसे कि मैंने बताया था, हमारी इंडिया में लोगों में सोमैटिक सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स ज्यादा है, हेडेक है, माइग्रेन है, आपका मन खराब है, तो देखा गया नॉर्मली आप खाना खाना बंद कर देते हैं, आपको नींद आनी बंद हो जाती है। बट वेस्टर्न अमेरिकन सैंपल में देखा गया कि लोग गिल्टी जल्दी हो जाते हैं, सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेते हैं। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स होना, छोटी छोटी बात पे, ये भी एक साइन है। आपके माइंड में वो कौन से थॉट्स हैं, आप सारा ब्लेम हर चीज का अपने ऊपर लेते हैं, आप अपने अंदर सिर्फ फॉल्ट फाइंड करते हैं कि शायद हर चीज में आपकी ही गलती है। अब धीरे धीरे देखेंगे कि आपके क्योंकि सारे माइंड में जितने 60-80,000 थॉट्स हैं वो सिर्फ नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपकी मेमोरी कम हो जाती है। अगर आप कोई मटीरियल याद करें, जैसे बच्चे अगर कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने देखा होगा अगर आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, आप एग्जाम में ब्लैंक हो जाते हैं। सिमिलरली एडल्ट्स में भी देखा गया है कि अगर आपका मन सारा तरफ नेगेटिव थॉट से ऑलवेज ब्लॉक है, तो आप देखेंगे नॉर्मली कि आपका माइंड में जो मेमोरी की जगह है, आपको चीजें रोज की भूलनी शुरू हो जाएंगी, आपने कौन सी चीज कहाँ रखी है। अगर आपको चीज सोचने की कोशिश करो, आपको एकदम से याद नहीं आएगी। ऊपर से आप कंफ्यूज रहते हैं, आप क्या डिसीजन ले, आप प्लान ए के साथ जाए, प्लान बी के साथ। अब बहुत सारे लोगों से एडवाइस मांगते हैं, शायद आप चुपचाप कंफ्यूज रहते हैं। ऑल्सो एक्सट्रीम सिचुएशन में सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश या मन में ऐसा ख्याल आना कि कल को अगर मैं नहीं हूं तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मोस्टली देखा गया जो लोग सुसाइड कमिट करते हैं उनके मन में यही ख्याल आता है कि इफ आई एम नॉट देयर टुमारो, अगर मैं नहीं हूं तो शायद लोगों को फर्क ना पड़े। फिजिकल सिम्टम्स आपकी बॉडी में क्या है? आपको सारा दिन थकावट लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, आप सुबह उठते भी हैं तो आप थके थके रहते हैं, आपका मन करता है आप सो जाएं, बट अगेन अगेन आपको इंसोम्निया, आपको नींद नहीं आ रही है। दोनों ही चीजें हो सकती है, या तो आपको रात को नींद नहीं आ रही है, सुबह नींद जल्दी खुल जाती है, बीच बीच में खुलती रहती है, या आपको नींद बहुत ज्यादा आ रही है। बहुत लोग ऐसे हैं कि जब उनकी लाइफ में परेशानी बढ़ जाती है तो वो सारा दिन सोते रहते हैं, वो भी एक एस्केप फ्रॉम रियलिटी आप कह लीजिए, एक डिनायल है कि आप अपनी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाह रहे हैं, तो आपका माइंड आपको शट डाउन करता है। कई लोगों के साथ देखा गया है कि वो खाना खाना बंद कर देते हैं। तो 5% आपकी बॉडी, अगर आपका वेट 60 है तो 55 पे आ गए हैं, या आपके सामने कुछ भी अगर आ रहा है, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग बढ़ गई है, चॉकलेट्स हैं, आइसक्रीम है, खाना है, आप बिंज ईट कर रहे हैं, उसको कंटिन्यूअसली यू आर एक्चुअली कंज्यूमिंग मोर फूड। लॉस ऑफ मोटिवेशन, अगर आपको बोला गया कि आपको जॉब पे जाना है, नहीं मन कर, आपका एब्सेंटिज्म बढ़ रहा है, आपकी फिजिकल इलनेसेस बढ़ रही हैं, आपको कोई भी काम घर पे जो उसका अपना घर का काम करना पड़े तो आपका मन नहीं कर रहा है, आपका दिल कर रहा है एक जगह लेटे रहें, कुछ ना करें। बहुत लोगों में देखा गया है कि ड्रग, स्मोकिंग, अल्कोहल की कंजम्पशन भी बढ़ जाती है। बिहेवियरली आप देखेंगे कि आपका लोगों से बातचीत करने का मन बिल्कुल नहीं है। आपने लोगों से पहले, अब जैसे अगर फोन कॉल आता है, मैसेज आता है, जवाब नहीं देते हैं, कई दिन जवाब नहीं देते हैं, कई घंटे निकल जाते हैं, घर वालों से आप बात नहीं कर रहे हैं, घर में आपका जो काम है, अगर आपको किचन में काम है या अपना कोई कोई जॉब रिलेटेड कोई काम है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपने करना छोड़ दिया है, निग्लेक्टफुल हो गए हैं आप। और दूर से ही आपको पेशेंट को देख के लग जाएगा कि हाँ वाकई में इस पर्सन का सेल्फ केयर जो होना चाहिए, अच्छे ब्राइट कपड़े पहनना, नहाना धोना, उसकी फिजिकल अपीयरेंस में आपको ऐसा लगेगा कि सडनली ये पर्सन पहले से एज से ज्यादा ओल्ड लग रहा है या उसकी हालत बहुत ज्यादा अनकेप्ट है। हम एक वर्ड यूज करते हैं साइकोलॉजी में, एनहेडोनिया। उसका मतलब क्या है कि बहुत बार देखा गया है कि पेशेंट में किसी भी चीज में मन लगता है। कल अवनीत आई थिंक पूछ तो भी ऐसा क्यों कई बार होता है कि जिनमें प्लेजरेबल चीज में इंटरेस्ट था, शॉपिंग जाना, मूवी देखना, गाने सुनना, कोई ऐसी आपकी हॉबी थी, वो अब आपका मन नहीं कर रहा है उसके अंदर बिल्कुल भी, बिकॉज ऑफ इधर डिप्रेशन, या जैसे हमने एक दिन स्ट्रेस में बात की थी, आपका बर्नआउट हो चुका है, आपको किसी भी चीज में कोई मन नहीं लग रहा, आपकी मोटिवेशन खत्म हो चुकी है क्योंकि आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। What I want to show you on the screen here is that हमारे यहाँ पे डिप्रेशन, ये सारी चीजें हैं जो एक साइकाट्रिस्ट आपको डायग्नोज करेगा। आप नॉर्मल लोगों को अगर आसपास देखेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या है। आप लोग मन में, अगर आप डायग्राम देखेंगे लेफ्ट साइड पे, लोग सोचते बहुत कुछ है, शायद दिमाग में 1000 ख्याल है, बट अगर आप उनको पूछेंगे तो वो आपको शायद कभी भी अपने बारे में नहीं बताएंगे। क्यों ऐसा होता है कि कितने सेलिब्रिटीज हैं, कितने फेमस लोग हैं जिन्होंने अचानक सुसाइड कर लिया? वो अचानक नहीं है, वो शायद आपके लिए अचानक है, पर शायद उनकी मेंटली अंदर से इंटरनली स्ट्रगल बहुत टाइम से चल रही है और वो किसी को अपने बारे में नहीं बता पा रहे हैं। So what is important here actually is that
पेशेंट जरूरी नहीं है कि आके लोगों को आसपास बताएंगे कि उनके साथ क्या तकलीफ है, वो इनविजिबल है, वो ओवरटली बाहर से आपको दिखेगा नहीं, वो लोगों के सामने जोक क्रैक कर रहे हैं, अंदर से दिल रो रहा है, आंखों में आंसू है, बस शायद वो कहेंगे कि नहीं हम ठीक हैं अगर कोई पूछे, पार्टी में हंस खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बट अंदर से सिवियरली डिप्रेस्ड है। डिप्रेशन एक ऐसी चीज है, जैसे बहुत सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, डायबिटीज है, वो दिखता नहीं है, वो इंटरनल है। डिप्रेशन भी एक ऐसी चीज है जो लोग नॉर्मली बताते नहीं है, लोगों को समझा रहे हैं, जब किसी और को जरूरत है उनकी हेल्प की तो वो लोगों को बहुत अच्छी स्पीच देने में बहुत अच्छे हैं, खुद की अपनी तकलीफें परेशानियां ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अगर काम पे जाना है, मन मार के जा रहे हैं, बट जैसे ही घर वापस आते हैं एकदम रोना शुरू करते हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको देखने से पता नहीं लग रहा है, बट उनको डिप्रेशन है और एक दिन कहीं किसी दिन वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। और इसके अलावा कौन सी कॉमन टाइप्स ऑफ डिप्रेशन है? मेजर डिप्रेशन। 2 हफ्ते के लिए आपको बहुत सिवियर सिम्टम्स आएंगे, आपका सुसाइड करने का मन करेगा, आपने खाना खाना बिल्कुल बंद कर दिया है, आपकी डिसीजन मेकिंग खत्म हो चुकी है, बिल्कुल ऐसा लगता है जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं अच्छा है, सब खत्म हो रहा है, करियर, हेल्थ, लोग, रिलेशनशिप, और देखा गया है कि आपका बिल्कुल अचानक नींद बिल्कुल खत्म हो गई है। बहुत सिवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन 2 हफ्ते के लिए सिर्फ लास्ट करता है, एंड बहुत सारे लोग सुसाइड भी अटेम्प्ट करते हैं। सेकेंड कैटेगरी, मुझे नहीं पता कि आपने कभी बुरारी केस के बारे में सुना है क्या? आप लोगों ने बुरारी केस जो आया था रिसेंटली, जिसकी नेटफ्लिक्स पे भी एक सीरीज आजकल चल रही है जिसका बहुत ज्यादा अच्छा रेटिंग आया है, क्या सुना है आप में से किसी ने बुरारी केस के बारे में, जहां एक फैमिली में 11 लोगों ने एक साथ सुसाइड कमिट किया था? एनीवन, अगर आपने सुना हो उसके बारे में? यस मैम, ये हुआ था पीछे ना, अभी लास्ट ईयर ही हुआ था ना ये। मैम हुआ कुछ साल पहले था, बट नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज आई है वो रिसेंटली लास्ट ईयर आई है। क्या आप कुछ बता हाँ, पाएंगे कि उसमें क्या आपने देखा, अगर आपने आपको यूर अवेयर ऑफ इट? उसमें कुछ मिस्टीरियस सा था कि वो किसी को फॉलो कर रहे थे कि somebody will do this and that to help you, है ना। हाँ जी। और उसमें फिर लास्ट में वो बोलते हैं कि कुछ कड़ी बीच में से मिस हो गई है, उसकी वजह से सारा जो है वो यस, आ, उनका कोलैप्स हो गया था कुछ। यस मैम। तो यू नो मैम, आई थोड़ा सा एलैबोरेट ऑन टू दैट। उसका रीजन ये है कि जो हम एक साइकोटिक डिप्रेशन की बात करने वाले हैं, नॉर्मल इंडिया में लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि साइकोटिक इलनेस होती क्या है। तो उसमें इशू ये आता है साइकोटिक इलनेस में नॉर्मली कि आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट किरण मैम, आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी ना लाइंस बार बार आ रही हैं पीपीटी पे, तो इफ यू कैन प्लीज, अगर आप स्क्रीन को वो लाइंस रिमूव कर दें, या शायद इफ यू आर, आपका शायद स्क्रीन सेंसिटिव है, पीपीटी पे लाइंस आ रही है, जस्ट रिक्वेस्ट टू यू। तो मैम उस बुरारी केस में ये हुआ था कि हमारे इंडिया में इतना ज्यादा हम लोग इन पुरानी मान्यताओं को, माइथोलॉजी को, और जैसे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस या घोस्ट में इतना ज्यादा हम मानते हैं इन चीजों को, कि 11 लोग एक घर में रहते थे दिल्ली में, एक एरिया था बुरारी, और वहां पे जो घर का सबसे छोटा बेटा था, उसने एक्चुअली ये रिपोर्ट किया दैट उसके फादर, जिनकी डेथ हुई थी रिसेंटली, वो उनके सपने में आते हैं और उनको बहुत कुछ बताते हैं कि क्या करना चाहिए। क्योंकि हमारी इंडिया में हम इन चीजों को इतना ज्यादा सीरियसली मानते हैं, आपने देखा होगा इंडिया में लोग मंदिरों में जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि नवरात्रि में माता आ गई है, या बहुत जगहों पे कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे घोस्ट सिकनेस है, कि आपको कोई स्पिरिट ने पोजेस कर लिया है। ये चीज इतनी कॉमनली मानी जाती है कि शायद लोग ये भी नहीं सोचते कि वो एक मेंटल इलनेस हो सकती है। यही चीज हमारी इंडिया में स्टिग्मेटाइज क्रिएट कर रही है, जिसको हमें फाइट करना है। तो उस लड़के ने अपने डायरी में नोट डाउन करना शुरू किया कि उसके फादर क्या कह रहे थे, और एक पॉइंट ऐसा आया कि जो जो फादर कहते गए, घर वाले बिलीव करते गए, और वो लास्ट ड्रास्टिक स्टेप ये था कि फादर ने ड्रीम में आके ये बात बोली कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जो फादर उनको बताएंगे घर वालों को करने के लिए, जो कि उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, एनलाइटनमेंट प्राप्त होगा, और वो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया जाए। और वो एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि किस घर वाले को कैसे अपने आप को किसी फॉर्म में सेल्फ सैक्रिफाइस करना है। आप देखेंगे कि जब वो केस, तो उसमें कोई मिस्ट्री नहीं थी, एक्चुअली वो एक क्लियर कट साइकेट्रिक डिसऑर्डर का केस था, कि किसी ने अभी तक ये डाउट नहीं किया कि वो जो बेटा है घर का, हो सकता है कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है कि उसको एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसकी वजह से किसी ने फादर को नहीं देखा, सिर्फ वो घर में कह रहा है कि उसको पापा दिख रहे हैं और वो डायरी में नोट डाउन कर रहा है, बट किसी ने एक बार भी शक नहीं किया कि इसको हम साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाए, और हो सकता है इसको मानसिक बीमारी है और पता नहीं पापा दिख ही रहे हैं या नहीं। आप ये सोचिए कि फैमिलीज में बीमारी कितनी ज्यादा ट्रैवल हुई कि 11 लोगों ने घर में, किसी ने अपने आप को हैंग कर लिया, किसी ने कुछ खा लिया, और 11 लोगों ने वो जो एक्सपेरिमेंट किया, उन सबका सुसाइड केस हो गया। तो उसमें शुरू में तो लोगों को लगा शायद मर्डर है, पर 11 लोगों का मर्डर एक साथ होना ऑफ कोर्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग।
बट प्रॉब्लम भी इवेंचुअली निकल के आई कि वो सबसे छोटा बेटा था, उसको स्किज़ोफ्रेनिया था। तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जो और लोगों को नहीं दिख रही हैं, दिमाग में कुछ वहम बैठ जाते हैं कि लोग मुझे हार्म करने की कोशिश करें, मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनके इमोशंस खत्म हो जाते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि उनकी बात में जो बात कर रहे हैं उनकी भाषा किसी को समझ नहीं आ रही। आपने सड़क पे देखा होगा, बेगर्स हैं, ऊंचा ऊंचा हंस रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं। तो बहुत बार डिप्रेशन में भी ऐसा होता है कि साथ में आप ऐसा आपको कोई साइकोटिक सिम्टम हो गया है, जो आपको कोई दिखाई दे रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है, जो वहां एक्चुअली कोई नहीं है। तो ये बहुत डेंजरस कंडीशन है जिसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आपने बुरारी केस के बारे में नहीं सुना है तो आप प्लीज जाके सीरीज देखिए, ताकि अब आप उसको एक अलग नजरिए से, एक अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे। सीजनैलिटी अफेक्टिव डिसऑर्डर, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने सुना है, बट कई लोग ऐसे हैं जिनको हर साल विंटर्स में, सर्दियों में डिप्रेशन होता है। और वो ज्यादातर कहाँ देखा गया है? जहाँ जैसे अमेरिका है, रशिया है, या आर्कटिक रीजन है, जहाँ आपने सुना होगा कि 2-2 महीने के लिए बिल्कुल धूप नहीं निकलती और पूरा दिन अंधेरा रहता है। तो आप ये सोचिए कि जब विंटर्स में यहाँ शाम को 5 बजे अंधेरा होता है और सूरज अगले दिन सुबह 7 बजे निकलता है। आप सोचिए उनके वहां पे अगर वो कॉलेज जा रहे हैं या कोई अपना काम कर रहे हैं या मार्केट जाना है, उनके वहां तो रोशनी आती है। तो कई लोगों को, जैसे लॉकडाउन में हम लोग घर में ही रहे सारा दिन, हम बाहर नहीं निकल पाए, कई लोग ऐसे हैं जहाँ पे बहुत स्नोफॉल होती है और वो घर के बाहर निकल ही नहीं पाते 2-2, 4-4 महीने के लिए। तो वो चीज, क्योंकि वो एक जगह बंद गए हैं, हर साल डिप्रेशन उनको विंटर्स में आना शुरू हो जाता है। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज की अवेयरनेस है। इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। डिप्रेशन है, पर शायद आपको आदत पड़ गई है ऐसे सैड रहने की, मन आपका खराब रहता है, नींद इम्पेयर्ड है, कहीं आप बाहर जा नहीं रहे हैं, बट क्योंकि वो 2 साल से चल रहा है, आपने उसको कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी है, आपको आदत पड़ गई और आप किसी डॉक्टर के पास नहीं गए हैं। प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वुमेन में जो मंथली मेंस्ट्रुएशन होता है, आप देखेंगे उससे पहले आपका मूड थोड़ा सा डिसरेगुलेशन शुरू हो जाएगा, मूड स्विंग्स है, आपकी ब्लोटिंग शुरू हो जाती है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। और ये चीज बहुत नॉर्मल है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर नितिका हैज रेज्ड हर हैंड। आप कुछ मैम कहना चाहेंगे? ओके, तो ये चीज हमें नॉर्मलाइज करने की बहुत जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये विमेन के साथ होता है, जेंडर स्पेसिफिक है, हम इस चीज को इग्नोर करते हैं, लाइक ऑल दी अदर इलनेसेस जो विमेन में ज्यादा कॉमन है, ये कह के कि हाँ उनको आदत है। और शायद हमें ये नॉर्मलाइज करने की जरूरत है कि कई लोगों को इतने सिवियर क्राइम्स हैं या इतना सिवियर पेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और वो जो मूड स्विंग्स है वो नॉर्मल है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वी नीड टू गिव इट इंपॉर्टेंस। वुमेन्स हेल्थ के टुवर्ड्स हमेशा एक डायरेक्शन में एक स्टेप इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा। और लास्ट कैटेगरी भी इज रिलेटेड टू वर्किंग टुवर्ड्स वुमेन्स मेंटल हेल्थ। क्यों? क्योंकि मोस्ट वुमेन, जब आपका चाइल्ड बर्थ होता है, आपका डिलीवरी होता है, हम सबको पता है कि वुमेन हु हैव चिल्ड्रन, आपने 9 मंथ को जो आपका 3 ट्राई सेमेस्टर आपके गए हैं, आपकी बॉडी में सिवियर हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपका बाद में जब आफ्टर द चाइल्ड इज बॉर्न बच्चा सिर्फ 2 घंटे सो रहा है, आपको स्लीप डेप्रिवेशन है, कई लोगों के फैमिलीज में इतना सोशल सपोर्ट नहीं है, और आपकी कई लोग ऐसे हैं, अमेरिका में देखा गया है कि मदर्स कई बार स्मोकिंग है, अल्कोहलिज्म है, उससे वो प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। कई बार बच्चा पैदा होता है सर उसको जॉन्डिस है, कोलाइटिस है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मदर पे ही आ जाती है। तो कहने की बात यह है कि सो मेनी सिम्टम्स अ मदर माइट गो थ्रू, इतना एक्सट्रीम सिम्टम्स भी अमेरिका में कई बार देखे गए हैं कि मदर को, जैसे कि मैंने एग्जांपल अभी दिया साइकोटिक इलनेस का, मदर को होश नहीं है और कई बार वो अपना ही बच्चे को मारने की कोशिश करती है बिकॉज उनकी एक साइकोटिक स्टेज चल रहा है। बट कभी भी आपने देखा है, आई एम श्योर यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं प्लेटफॉर्म पे हु आर मदर्स हिमसेल्फ, या बहुत अगर यंग गर्ल्स हैं हु आर नॉट मैरिड इवन नाउ, कितनी बार गायनो, या आपने फैमिलीज में देखा है कि आपके साथ में घर में कोई आपके कजन्स हैं या कोई और भाभी हैं जिनके अगर चाइल्ड बर्थ हुआ है, कितनी बार गायनोकोलॉजिस्ट एक मेडिकल प्रोफेशनल होने के बाद भी आपको एक साइकाट्रिस्ट के पास भेजनी है कि प्लीज जाओ अपना डिप्रेशन ठीक कराओ। बल्कि चाइल्ड बर्थ फैमिली में इतना हैप्पी ओकेजन माना जाता है, कितने लोगों ने कभी मदर को इंपॉर्टेंस दी है कि यस मदर को रेस्ट की जरूरत है, या उसकी बॉडी में जो बायोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, हाउ मेनी टाइम्स आजकल यस नाउ आजकल फादर्स ने भी साथ में शुरू किया हेल्प करना, बट फिर भी अगर आप देखा जाए तो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर के साथ है। एंड दे से दैट ऑलमोस्ट 70-80% मदर्स को डिप्रेशन होता ही होता है। कई मदर्स को 1-2 महीने रहता है, कई मदर को 1-1 साल तक रहता है, उसके बाद भी रहता है, बट आई डोंट थिंक द मदर हैज एक्शन आ रहा है और वो बच्चे का ध्यान नहीं दे पा रही है, बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंप्लीटली ऑन द मदर ऑफ द फैमिली।
सो दीज आर थिंग्स जो हमें पता होना चाहिए। एक प्राइमरी कैटेगरी है, इसके अलावा भी बहुत सारी और कैटेगरीज है, बट लाइक आई टोल्ड यू आई एम डिस्कसिंग ओनली द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। इसके अलावा मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आई अज्यूम कि अगर इस ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं तो शायद उनके लिए, या अगर आपके साथ आप लोग डील कर रहे हैं कॉलेजेस में, पैंडेमिक ईयर में स्पेसिफिकली सुसाइड रेट हाईएस्ट, अगर आप देखेंगे एनसीआरबी के एक मैंने लेटेस्ट एनालिसिस पिकअप किया है, हाईएस्ट रेट ऑफ सुसाइड किस में देखा गया? स्टूडेंट पॉपुलेशन में। शायद इसलिए हमें मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वर्कशॉप कंडक्ट करने की जरूरत है स्कूल एंड कॉलेज लेवल, फॉलोड बाय जो लोग सैलरीड है, जॉब कर रहे हैं, लेबरर्स हैं जो डेली वेजेस पे, रिटायर्ड लोग हैं, या जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं। बट क्योंकि बच्चों में हाईएस्ट है, ये पहले भी था, ऐसा नहीं है, हमारे आउट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, हमारी इंडिया में 15 से 24 एज ग्रुप में हाईएस्ट प्रेवलेंस देखा गया है जिन लोगों में सुसाइड का आइडिएशन आया है। और वो प्रेवलेंस रेट हाईएस्ट होने के बावजूद हमारी गवर्नमेंट उस डायरेक्शन में कुछ नहीं कर पा रही है, जिसके लिए हमें अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। बट मैं आपको एक केस स्टडी दिखाना चाहती हूँ, आई विल रीड, आप मेरे साथ स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। आप मुझे अगर आप बता सके कि इस बच्चे की मेजर प्रॉब्लम क्या है, आई एम श्योर वी आर ऑल एजुकेटेड पीपल, हम सब फैकल्टी मेंबर्स हैं मोस्टली, यू विल बी एबल टू डायग्नोज, ताकि हम रियलाइज करें कि बच्चों पे अलग तरीके का प्रेशर भी है, जो कि पैंडेमिक से पहले का केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बच्चे ने एक व्हाट्सएप मैसेज लिखा है अपने पेरेंट्स को, मैं पढ़ रही हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं साथ में। आई एम टोटली, ये एक बच्चा वो है जिसका ऑल इंडिया रैंक आया है एमबीबीएस में, और वो एक सक्सेसफुल इंस्टीट्यूट में ऑल इंडिया एम्स में एमबीबीएस कर रहा है। उसने लिखा है दैट आई एम टोटली सेट अप ऑफ माई लाइफ विद माई कॉलेज, विद माई स्टडीज, विद यू टॉकिंग अबाउट यूएसएमएलई। यूएसएमएलई क्या है? अमेरिका में जाने के लिए एमबीबीएस के बाद जो हम एमडी की डिग्री करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, तो ये एक मेडिकल स्टूडेंट है जिसने अपने पेरेंट्स को ये मैसेज लिखा है कि पेरेंट्स की तरफ से इतना ज्यादा प्रेशर है कि आप यूएस जाओ एमबीबीएस के बाद और वहां का एग्जाम क्लियर करो। तो विद यू टॉकिंग अबाउट यूएसएमएलई ऑल द टाइम, अब ये कर ले, अब वो कर ले, ये रिसर्च कर ले, वो क्वेश्चनर कर ले, एक्सेट्रा। It's been 6 months. I have not had a break and I am under constant stress of studies here. घर आता हूँ सोच के कि थोड़ा रेस्ट रिलैक्स करूंगा, तो आप होते हो कि बता आगे का क्या प्लान है तेरा, भला ये कर रहा है, सो एंड सो ये कर रहा है, जैसे हमारे यहाँ पे पेरेंट्स कहते हैं कि अच्छा बाकी लोगों के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। ड्रॉइंग कंपैरिजन ऑल द टाइम। पापा पूछते हैं कि नेक्स्ट कहाँ जाना है। डू बोथ ऑफ यू इवन अंडरस्टैंड माई मेंटल स्टेटस। इतना गुस्सा आता है कि ना घर आके, इससे अच्छा तो मैं हॉस्टल में ही फील करता हूँ। स्ट्रेस ऑफ स्टडीज फील्स बेटर देन फेसिंग यू पीपल। आई एम ग्रोन अप नाउ टू मेक माई ओन डिसीजन। क्या पूरी जिंदगी इसी स्ट्रेस में निकालूंगा कि कोई मुझसे आगे निकल जाएगा? और विल यू गिव मी टाइम टू वर्क ऑन माई सेल्फ। एक लिमिट तक बात करना ठीक रहता है, आप रुकते नहीं हैं। प्लीज गिव मी एटलीस्ट 10 days when I can just relax without thinking about my future, and please don't call me or try to talk to me till I come back home. क्या कोई अपने व्यूज शेयर करना चाहेगा कि इस बच्चे की मेन प्रॉब्लम क्या है, और अगर इस बच्चे को डिप्रेशन है तो वो किस वजह से है? Anyone? Any audience? I hope I am audible to everybody. आपको आवाज आ रही है? यस मैम, यू आर फुली ऑडिबल। मुझे हाँ जो जी। इसको सुन करके पढ़ करके लग रहा है, वो हाँ ये जी। लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें रिलेशनशिप्स भी चाहिए होते हैं। ऑल द टाइम स्टडीज करना, ऑल द टाइम प्रोफेशंस के बारे में बात करना, करियर्स के बारे में बात करना, कई बार हम लोग ये भी चाहते हैं कि माँ सिर्फ माँ बन के रहे, पापा सिर्फ पापा बन के रहे, है ना। कई बार क्या होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी हावी हो जाती हैं कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारा आपस में रिश्ता क्या है। ऑल द टाइम वो पैसे को लेकर के ही बात होती है कि करियर होगा तो लाइफ Yes. ऐसी होगी। हाँ जी। यस, थैंक यू सो मच। पैराडाइम शिफ्ट करने की जरूरत किसकी तरफ है? हमारी इमोशनल वेलनेस पे। जैसे कि मैं उस दिन स्ट्रेस मैनेजमेंट वाले दिन आप लोगों को बता रही थी कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लाइफ में गोल्स रखते हैं। जैसे आप नॉर्मल, अगर आप किसी और बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, बच्चा एमबीबीएस कर रहा है एम्स में, उससे बेटर उसको क्या मिल सकता है? आप देखिए, एम्स में एडमिशन मिलना एक इम्पॉसिबल टास्क है। सोचिए बच्चा कितना हाईली इंटेलिजेंट होगा। तो पहली बात यह है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सबसे इंटेलिजेंट बच्चे को भी हो सकती है, क्लास के टॉपर को भी हो सकती है, और शायद टॉपर को ही हो सकती है क्योंकि उसके ऊपर परफॉर्मेंस का बहुत ज्यादा प्रेशर है।
और कई बार हम अपनी जर्नी में इतना ज्यादा हम अपना एक माइलस्टोन सेट कर लेते हैं, गोल सेट कर लेते हैं, इस बच्चे का एम होगा एम्स पहुंचना, वो बच्चा पहुंच गया, बट क्या उसको खुशी है? नहीं। हमारे आजकल के जमाने में अगर हम फिगर्स देखें इंडिया में, सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ डिप्रेशन किसमें है? मेडिकल प्रोफेशनल्स में। जो लोग बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, जो लोग आईआईटीज में है, आईएम्स में, क्यों? क्योंकि एक एवरेज बच्चा को ज्यादा उम्मीद नहीं है, वो उससे जितना मैनेज हो रहा है वो कर रहा है, और उसके ऊपर उस किस्म का प्रेशर नहीं है। पर जो शायद टॉपर है उसके ऊपर प्रेशर और भी ज्यादा है। और हमें क्या वर्क करने की जरूरत है, जैसे मैम ने इतनी ब्यूटीफुली समझाया कि कई बार हमें रिलेशनशिप को और इमोशनल वेलनेस को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा वो एस्पिरेशन, वो एम्बिशन, गोल अचीव कर तो ले और शायद उसको उस बात की खुशी ना हो। क्यों आजकल ऐसा हो गया कि जो टॉपर्स हैं, जिनको सीजीपीए 10 भी आ रहा है, बट उनके अंदर डिप्रेशन हाईएस्ट आ रहा है, या उनको घबराहट है शायद उनका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। इसका मतलब ऑलरेडी उनमें परफेक्शनिज्म है, खुद से उम्मीद ज्यादा है, फैमिली का प्रेशर हायर है, बट इन द प्रोसेस कहीं ऐसा ना हो कि वो गोल अचीव करने में उस बच्चे की जिंदगी में शायद कोई खुशी ना रहे, और वो कल को बच्चा वो एग्जाम तो क्लियर कर जाए बट आप साइकाट्रिस्ट के पास बाद में रह जाए, या वो बच्चा कहीं साल लगा दे रिकवर और ठीक होने में। तो हमें कहीं ना कहीं पे किस चीज को स्ट्रेंथन करना है? हमारी रिलेशनशिप को। हमारा फोकस करियर पे, गोल्स पे और ऐसी सारी मटीरियलिस्टिक चीजों पे इतना ज्यादा हो गया है कि जो हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी खुशी, हमारी इमोशनल वेलनेस, वो तो कहीं खो के रह गई है। उस पर तो हमारी इंपॉर्टेंस रह ही नहीं गई है। हम अगर पूरे दिन में, जैसे मैं उस दिन भी 2 दिन से आपको यही टॉक दे रही थी कि अगर हम पूरे दिन में हम अपने करियर पे इतना ज्यादा टाइम निकाल रहे हैं, शायद जब हम घर आते हैं हमारे अपने लिए, अपनी हॉबीज के लिए टाइम बचता नहीं है। हमारा लाइफस्टाइल इतना हेक्टिक हो चुका है कि हमारे अपने लिए क्योंकि हम कुछ ऐसा पैशनेट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज हमारे को अफेक्ट करनी शुरू करेगी। और कहीं ऐसा ना हो कि हम उस स्टेज तक पहुंच जाए जहां धीरे धीरे रिकवर करने में हमें कई और साल निकल जाए। तो बच्चों के साथ रिलेशनशिप करना पेरेंट्स का बिगेस्ट अल्टीमेट गोल होना चाहिए। बच्चे में इतनी आपके साथ ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए कि चाहे बच्चे के लाइफ में क्राइसिस है, एटलीस्ट वो आपको आके बता सके। ऐसा क्यों है कि वो बच्चा बाहर साइकेट्रिस्ट को या किसी स्ट्रेंजर को अपनी प्रॉब्लम बता रहा है बट पेरेंट्स को नहीं पता? आप मानेंगे जब हम कॉलेज में बच्चों को काउंसिल करते हैं, बीइंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कितने बच्चे मुझे अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारे ऐसे सीक्रेटिव चीजें या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें एक सेटिंग में बता जाते हैं, और मैं एक सेटिंग में उनके साथ टॉक कर पाती हूँ, वो शायद घर वालों के साथ रैपो क्यों नहीं है, विच इज वेरी सैड। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी रिलेशनशिप जो घर में है, वी नीड टू वर्क ऑन देम, वी नीड टू स्ट्रेंथन देम, ताकि अगर वो स्ट्रेंजर को बता सकते हैं तो सबसे पहले तो घर वालों को ही बताना चाहिए ना। इतना आपका कम्युनिकेशन का चैनल ओपन होना चाहिए। दिस इज ओनली वन एग्जांपल, इट आल्सो अप्लाइज एडल्ट को, किसी भी आप किसी प्रोफेशन में कहीं भी है। But I think we are only focusing on materialistic things, but we are unfortunately lagging behind on what? Our happiness quotient. जो हमारा happiness quotient है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, हमारे सर्वेज में इंडिया का बहुत पीछे रह गया है। That is something आप देखेंगे किसका happiness quotient सबसे highest है वर्ल्ड में? भूटान का। वो लोग अपना happiness quotient चेक करते हैं, और फिनलैंड एक कंट्री है जिसका एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है। आपको मैं ओनली फॉर अवेयरनेस पर्पस एक और चीज बताना चाहती हूँ कि डिप्रेशन के अलावा एक और कंडीशन है जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है, जो डिप्रेशन से ही रिलेटेड है, जिसे हम कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। आप मानेंगे नहीं, जब मैं पीजीआई में थी इतने सालों में मेरे एक्सपीरियंस में इतना ज्यादा रेट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर बढ़ चुका है, बट एजुकेटेड लोग फ्रॉम गुड फैमिलीज, उनको पता ही नहीं है कि ये चीज बाइपोलर में है। तो बाइपोलर का मतलब यह है कि कई बार कई लोगों में 2 टाइप के एक्सट्रीम आते हैं। हम हिंदी में अगर उसको नॉन मेडिकल टर्म्स में कहना चाहे तो शायद बहुत लोग आके कहते हैं कि हम उनके पास शायद हफ्ते के ड्यूरेशन में तेजी आ गई है। उस तेजी का मतलब क्या है? अचानक से उनकी एनर्जी बढ़ गई है, वो घबराए घबराए रेस्टलेस घूमते हैं, सेक्सुअल ड्राइव बढ़ गई है, इम्पल्सिवली बिना सोचे समझे चीजें करते हैं। देखा गया है कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा आ गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ड्रिंकिंग में है, अल्कोहलिज्म में है, स्मोकिंग में है, कैसीनो गए, पैसे स्पेंड कर लिए, पूजा पाठ बहुत ज्यादा हो गई, नींद बिल्कुल नहीं आई, रात को अपनी मर्जी से दिन में सिर्फ 2 घंटे सो रहे हैं, बस एनर्जी इतनी बढ़ गई है। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं हमारे जैसे, हनी सिंह हैं, वो उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया कि कई बार ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में, अल्कोहल में ये चीज बढ़ती है। बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज में आप बहुत सेलिब्रिटीज हॉलीवुड में देखेंगे जो खुद से आके जिन्होंने रिपोर्ट किया है, जैसे कैथरीन जीटा जोन्स हैं, बहुत और लोग हैं जिन्होंने खुद से बताया है कि यस उनको बाइपोलर के सिम्टम्स हैं। ये कंप्लीटली क्योरेबल है अगर आप मेडिसिन लेंगे, और उसमें कोई वो नहीं है, बट पहली बात है कि अवेयरनेस और आइडेंटिफिकेशन, आपको पता तो लगे। तो इन लोगों में तेजी अचानक हफ्ते के लिए बढ़ गई है जिसका उनके पास कोई वजह नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि आप अपने जिंदगी का सबसे खुशी भरा दिन सोचिए कि सपोज आपको प्रमोशन मिली है, या आपने कोई नई
गाड़ी खरीदी है, या कोई फ्रेंड कोई आपको मिलने आई है, या आपने कुछ भी ऐसा किया है जिससे आपको बहुत खुशी मिले, और वो अगर आपको बहुत ज्यादा खुशी है और अगर हम आपको बोले कि चलिए साइकाट्रिस्ट के पास चलिए क्योंकि आपको कोई बीमारी है, क्या आप जाएंगे? कभी भी। तो पेशेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि इनको पता ही नहीं है कि इनको क्या बीमारी है, और सबसे वर्स्ट अफेक्टेड कौन है? इनके फैमिली मेंबर्स जो इनके साथ डील कर रहे हैं। तो उनकी नॉर्मली सेलिब्रिटीज में देखा गया है कि इनकी क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा है, जो काम इतने सालों में नहीं किए वो हफ्ते में खत्म कर दिए, सारा काम, चैनलाइज एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो उस वजह से इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा ही कुछ अग्रेशन, गुस्सा भी कई बार आने के चांसेस हाई है। और इसका अदर एक्सट्रीम कब है? कभी कभी मेनिया होता है, और कभी कभी क्या हो सकता है, जो कि डिप्रेशन के सिम्टम्स की हमने बात की है, मन खराब है, नींद नहीं आ रही है, सुसाइडल आइडिएशन है, आप रो रहे हैं, आपको भूख नहीं लग रही है, आपकी एनर्जी कम है, आप कोई काम करें आपका मन नहीं लग रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप दोनों एक्सट्रीम्स पे कई बार एक पेंडुलम की तरह इस साइड और उस साइड आप फ्लोट करते हैं। बट ये जो मेनिया, जो हमने ओवर एनर्जी, तेजी की बात की है, ये आपके लिए कितने दिन तक रहेगा? हफ्ते तक रहेगा। उसके बाद हो सकता है पूरा साल ठीक रहे और या आपको साल में दूसरी बार कभी डिप्रेशन आ जाए। इस चीज की अवेयरनेस मैं आपको देना चाह रही थी, बिकॉज बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं हर साल और लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है, आपको अवेयरनेस है, तो प्लीज आप उसको इन्फॉर्म कीजिए ताकि वो साइकाइट्रिस्ट से हेल्प ले। अब डिप्रेशन के कॉमन कॉजेज क्या है? हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स हैं और वो केमिकल्स हमारे बहुत सारे फंक्शन से रिलेटेड है। जैसे एक केमिकल है जिसे हम कहते हैं सेरोटोनिन। आपने देखा होगा अगर प्रिंटर में इंक कार्ट्रिज खत्म हो जाए तो प्रिंटर प्रिंट कैसे करेगा? कर ही नहीं सकता। अगर आपने एक पानी की बोतल रखी और आपने सारा पानी खत्म कर दिया है तो बोतल तो खाली हो गई। ऐसे ही बिकॉज ऑफ डिप्रेशन हमारा ब्रेन भी इफेक्ट होता है। कुछ ऐसे केमिकल ब्रेन में है जो खत्म हो जाते हैं। जैसे अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आप विटामिन डी की सप्लीमेंट खाते हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो आप दवाई खाते हैं। अब आप खुद बताइए, अगर आपके ब्रेन में वो केमिकल खत्म हो गया है, सिर्फ बातचीत से या काउंसलिंग से वो केमिकल ब्रेन में नहीं बढ़ता दोबारा। जो लोग सुसाइडल है उनका तो केमिकल बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो जैसे कि हम रोज बीपी की, डायबिटीज की दवाई खाते हैं, हमें ये अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है कि अगर आपको दवाई की जरूरत है, आपको 100% खाना चाहिए। लोगों के बारे में बहुत गलत अफवाहें हैं, बहुत स्टिग्मा है ये सोच के कि नहीं दवाई नहीं खानी चाहिए, नींद आ रही है, कोई साइड इफेक्ट हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा आपको। आप 6 महीने, 1 साल जितना आपको डॉक्टर कहता है दवाई खाइए और आप देखेंगे कि वो ब्रेन अगर अपने आप से ये तो वही बात होगी कि जिन लोगों को अस्थमा है, हम वो लोगों को कहते हैं जी आप कितनी हवा है, आपको सांस क्यों नहीं आ रही? उसको नहीं आ रही, उसकी लंग्स में म्यूकस डिपॉजिटेड है। तो ऐसे ही कितनी बार हम कहते हैं कि अगर किसी को बुखार है, क्या हम घर बैठ के बुखार में पॉजिटिव थिंकिंग सोचते हैं? अब सोचिए अगर आप में से किसी को कोविड हुआ है, क्या आपने घर में बैठ के पॉजिटिव थिंकिंग सोची और आपका कोविड चला गया? नहीं जाएगा। इसे ही हम टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं। आपको दवाई की जरूरत है, आपको खाने की जरूरत पड़ी, चाहे आपने एजिथ्रोमाइसिन खाई या आपने कोई पैरासिटामोल खाई, इसलिए अगर ब्रेन में आपका केमिकल कम हो गया है तो आपको दवाई की जरूरत है। यही केमिकल जो कि सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, डोपामाइन है, इसकी कमी की वजह से आपको ये घबराहट है, ये गुस्सा, ये इरिटेबिलिटी, ये कंसंट्रेशन कम, नींद कम आना, भूख कम लगना, ये सारे इन्हीं केमिकल कम होने की वजह से है। इसके अलावा डिप्रेशन में और क्या देखा गया? जिन लोगों के फैमिली हिस्ट्री डिप्रेशन का है, वो जीन आप में चला आ रहा है, वो जीन आपको खत्म करने का तरीका नहीं है। तो अगर आपकी फैमिली में कोई चीज है, आपका रिस्क बढ़ जाता है। ब्रेन में मैंने आपको बताया केमिकल की कमी है जिसके लिए आपको दवाई की जरूरत है। आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कोई बुलिंग है, फैमिली में डेथ है, आप ड्रग्स ले रहे हैं, आप अल्कोहल ले रहे हैं। शायद जैसे कितने लोग इंडिया से अमेरिका शिफ्ट होते हैं पढ़ाई के लिए, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, शायद अकेलापन आपकी जिंदगी में बहुत है। जैसे मैंने आपको बात की कि अगर आपके लोग आस पास 10 लोग भी हैं, नहीं आपको उनसे प्यार, वो इमोशनल सपोर्ट मिल रहा, आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, आप सारा दिन टेक्नोलॉजिकल एडिक्शन पे हैं, आप अपने लिए खुद के लिए सारा दिन आप मूवीज बिंज वॉच कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे रहते हैं, या आपका लाइफस्टाइल इतना हेक्टिक, आपको काम ज्यादा रहता है, सोशल मीडिया है, बीमार रहते हैं आप, आपको डायबिटीज है, कैंसर है, कोई ऐसी बीमारी है लाइलाज है, ठीक नहीं हो रही है, घर में डेथ हो गया है, ग्रीफ है। जैसे मैंने आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में एग्जांपल दिया था, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपको स्ट्रेस लेने की ज्यादा आदत है, आप छोटी छोटी बातें घबरा जाते हैं, आपको ओवर थिंकिंग की आदत है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिप्रेशन को फोकस करते हैं। हमारा फोकस किस पर रहेगा, जो कि आज मेरा टॉपिक ऑफ वेबिनार है, वो है एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। आपने सुना होगा बहुत लोग थेरेपी पे जाते हैं। हम इंपॉर्टेंट चीज जिस पे फोकस करेंगे, जो चीज अगर आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, आप एक्सट्रीम, आपको सिवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन नहीं है, बट आप अपनी सेल्फ जनरेटेड, अपनी सोच की वजह से अगर आप अपने आप को डिप्रेशन में डाल रहे हैं, तो यही टाइम है कि आप ये चीजें करना बंद कर। ये मेरे मेन लेक्चर और वेबिनार का फोकस इसी पे रहेगा कि वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से आप अपने आप को खुद परेशानी में डाल रहे हैं, तो उनको अवेयरनेस क्रिएट करना। एरन बेक, जिसकी आप फोटो देख सकते हैं, ये येल मेडिकल स्कूल में गए थे
इन्होंने साइकाट्री की है, सबसे ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन डिप्रेशन और सुसाइड पे है। आज भी ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में काम करते हैं और ये जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है इन्होंने ही दी है। क्या कह रहे हैं ये कहते हैं कि सबसे पहले अगर हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आना शुरू हो जाए कि मुझसे काम नहीं होता, मैं फेलियर हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, वो थॉट आपके साथ इमीडिएटली क्या क्रिएट करता है? इमोशन। आपको बुरा लग रहा है, आप डिप्रेस्ड हैं, बात यह है कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, इस तरफ और आपकी तरफ अपनी सोच है। जैसे कि मैंने बताया एक दिन पहले भी, अगर आप किसी के साथ बातचीत करते हैं और आपको घबराहट हो रही है, आपको एंग्जाइटी हो रही है, तो उस पर्सन ने तो आपको कुछ नहीं बोला, वो तो शायद नॉर्मल बात कर रहे हैं, कि आपके अपने मन का खुद का थॉट प्रोसेस है, जहां आपको लगता है कि वो आप इंटरेस्टिंग नहीं है, शायद लोग आपको जज करें, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, या आप देखने में बहुत ज्यादा आपको यू नीड टू चेंज योरसेल्फ, या शायद आपको लग रहा है आप केपेबल नहीं है। तो ये जो थॉट्स हैं इनका कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, आपकी अपनी खुद की सोच है। इससे क्या फीलिंग क्रिएट हो रही है? आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको लोगों से बात नहीं करने का मन कर रहा, आपका मूड खराब रहता है, आप अकेले बैठना चाह रहे हैं। इसी से जैसे ही थॉट नेगेटिव इमोशन क्रिएट करेगा, आपकी बॉडी में आप देखोगे सिर दर्द शुरू हो जाएगा, हेडेक शुरू हो जाएगा, एक ब्रेन फॉग, एक नमनेस शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी में कहीं दर्दें, एक सन पेन शुरू हो जाएगी। और उसको कम करने के लिए आप क्या करना शुरू करते हैं? या तो आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, आप लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, आप खाना ज्यादा खा रहे हैं, कम खा रहे हैं, आप घर पे रहना चाह रहे हैं। तो बेसिकली जो आपके थॉट्स हैं, आपकी इमोशन है, आपकी बॉडी में जो चेंज आ रहा है और आपका बिहेवियर है, ये आपस में रिलेटेड, ये एक साइकिल है। और ये साइकिल कहाँ से शुरू हुआ है? नेगेटिव थॉट्स हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। ये जो अनहेल्पफुल थिंकिंग पैटर्न है, जो कि हमारा टॉपिक है वेबिनार का, इसे हम और क्या कह सकते हैं? कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। आपने पिक्चर देखा होगा कि ये पर्सन जो है, इसके माइंड में कितनी उलझने हैं, कितने सारे ऐसे हजार थॉट हैं जो आपस में उलझे हुए हैं और इनको हमें धीरे धीरे खोलना है। तो बेसिकली हम ये एम्फसाइज करना चाह रहे हैं कि कितनी बार माइंड में ऐसे थॉट्स आते हैं जिनका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, बट ये हमारी सोच है। और हम इंपॉर्टेंट मैसेज क्या देना चाह रहे हैं कि ये जो हमारी सोच है, ये सोच जरूरी नहीं है कि ये ठीक हो, हमारा हर थॉट ठीक नहीं है। अभी हमारी मेमोरी जो याददाश्त है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बचपन से लेकर हम जिस भी एज तक पहुंचे हैं, अगर हमें पता है कि कोई चीज गर्म है तो हम एकदम उससे हाथ अलग करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में वो स्टोर्ड है कि ये चीज ठीक नहीं है। अगर सामने पॉइजन पड़ा है तो हमारे दिमाग में कोई एक वो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है बचपन से कि अच्छा ये पॉइजन है, इसको टच नहीं करना है। तो जितनी भी डेंजरस चीजें हमारी लाइफ में हैं, कहीं ना कहीं पे हमारे दिमाग में वो मेमोरी स्टोर्ड है। जब हम लोगों के साथ डील करते हैं, बात करते हैं, तो जो पहले हमारे साथ पास्ट एक्सपीरियंस हो चुका है वो हमें मदद करता है ताकि हम आगे से उस चीज को बेटर हैंडल कर सकें। बस हमें क्या याद रखने की जरूरत है कि हमारे दिमाग में जितने भी थॉट्स आते हैं वो सारे के सारे ट्रूथ नहीं है, फैक्ट नहीं है, वो आपकी अपनी पर्सनल सोच है। किस चीज से अफेक्टेड है? वो अफेक्टेड है आपकी फैमिली एनवायरनमेंट से, आप किस कल्चर में बॉर्न है, आपके साथ पहले क्या एपिसोड हो चुका है, शायद आपके दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस जैसे कि हमने बात की है वो चल रहा है, या हो सकता है आपका लाइफस्टाइल ऐसा है। कोई ना कोई आपके रीजन है, सोशो कल्चर बायोलॉजिकल रीजन है जिसकी वजह से आपकी सोच ऐसी है। तो इसका मतलब बॉटम लाइन कंक्लूजन क्या है? आपके दिमाग में जितने थॉट आते हैं वो एक्यूरेट और सच नहीं है। हमें फर्क किसमें पता लगाना है कि क्या कौन सी सोच है जिसका आपके पास प्रूफ है और कौन सी ऐसी सोच है जो आपने अपने दिमाग में खुद की सेल्फ जनरेटेड उलझने बना रखी है। ओनली टू चेक, आई होप मेरी आवाज आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कम्युनिकेशन में? Yes, ma'am, आ रही है, आ रही है। ठीक, ठीक है जी, ठीक है। तो हम चलते हैं वो सारी चीजें जो हम सब कभी ना कभी जिंदगी में किसी स्टेज पे हमने किया होगा, ताकि हम उनको अब से नाउ ऑनवर्ड एक एफर्ट बनाए, हम उनको चेंज करें। तो वो कौन से टाइप्स ऑफ अनहेल्पफुल थिंकिंग पैटर्न है? पहला पैटर्न है ऑल एंड नन थिंकिंग। इसका मतलब क्या है? कभी कभी हमारे दिमाग में एक ऐसी सोच का पैटर्न बन जाता है कि हमें लगता है या जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा है या बहुत खराब है, या लोग बहुत सेल्फिश हैं, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, या हम कई बार सोचते हैं कि हम बेवकूफ बन रहे हैं क्योंकि हम लोगों पे कुछ ज्यादा ही भरोसा कर बैठे हैं। तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग है ना, कि जिंदगी में सब कुछ काला और सफेद है, जिंदगी ऐसे ही। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान बहुत अच्छा है और आपके साथ बहुत लविंग है, आपको हमेशा सपोर्ट करता है, हो सकता है अगली बार वो आपके पास अवेलेबल ना हो, किसी ने आपके लिए 90 में से 99 चीजें बहुत अच्छी की है और एक बार आपकी मदद नहीं की, तो हम इमीडिएटली कई बार अपनी गलती की वजह से क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं
कि ये पर्सन सेल्फिश है, देखा मुझे जब इसकी जरूरत थी ये पर्सन नहीं आया। उस पर्सन ने कुछ नहीं किया, आपने तो उसको पूछा भी नहीं जाके कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम थी, हो सकता है उसकी कोई लिमिटेशन की वजह से वो आपको रीच आउट नहीं कर पाया, आपने एकदम क्या सोच लिया कि नहीं वो पर्सन भरोसे लायक नहीं है, ही है। तो जो ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग है कि ये सब कुछ क्या बहुत अच्छा या खराब है, जैसे कि अगर आपसे काम अच्छा नहीं हुआ और आपको है परफेक्शनिज्म की बीमारी थी, बहुत अच्छे से काम होना चाहिए, बेस्ट मेरी क्वालिटी होनी चाहिए, और एक बार आपसे काम अच्छा नहीं हुआ, कई लोग ऐसे हैं जो दिमाग में वहम बैठा लेते हैं कि आज के बाद, जैसे कि स्टेज स्पीकर, आपको एक ड्यूटी मिली, आपने स्टेज पे आपको माइक हैंडल करना था या डिबेट में आपने पार्टिसिपेट किया, हो सकता है आपने तैयारी बहुत अच्छी की हो, आपने लिखा बहुत अच्छा हो, और फॉर वट एवर रीजन उस दिन आपसे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई, आप मन में एक वहम बिठा लेते हैं कि नहीं पब्लिक स्पीकिंग मुझसे नहीं होगी, ये मेरे बस की बात नहीं है, और आप कभी भी दोबारा पार्टिसिपेट नहीं करते, तो वो तो आपकी अपनी मन में वहम है। बहुत लोग एक्टर्स भी ऐसे होते हैं, कभी कभी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है और कोई कोई दिन उनके हिसाब से ठीक नहीं जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मन में एक परमानेंट वहम बैठा ले कि ये चीज हमसे नहीं होगी, ये और टू ओवर जनरलाइजेशन। जैसे हमने बात की है कि अगर आपकी एक स्टेज पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई है, अगली बार से आप अज्यूम करें कि आप स्टेज पे कभी भी अच्छा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपने अपने मन में वहम बिठा लाए। तो एक एपिसोड को मन में लेके आपने एक ओपिनियन बना ली, एक डिसीजन ले लिया जो कि गलत है, इनकरेक्ट है, या आपके मन का वहम और अजम्पशन है। क्यों? क्योंकि आपके साथ एक नेगेटिव एपिसोड हुआ। आई गिव यू एन एग्जांपल। जैसे कितनी बार होता है कि आपको डॉग ने अटैक किया, अगली बार से चाहे आपको कोई भी डॉग की ब्रीड मिल जाए ना, आप डॉग से दूर होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि सारे डॉग डेंजरस है। एक बहुत गलत अफवाह, एक बहुत गलत वहम हमारे माइंड में आ जाता है कि हम मुस्लिम से बात ना करें क्योंकि वो लोग जिहाद में है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि वो एक कैटेगरी अलग है, और ये हमारे माइंड में एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कह लीजिए, रिलीजियस सेंटिमेंट पे हम करते हैं। ऐसे ही सिमिलरली हम अपने आप को भी जज करते हैं। हमने जिंदगी में कोई एक गलती कर ली, 10 साल पहले, 5 साल पहले, आज भी हम उसको नहीं बोले हैं। हो सकता है कोई बच्चे ने क्लास में आंसर किया हो और बाकी बच्चों ने मजाक उड़ाया हो, तो अब इतने साल बाद भी जब वो स्कूल पास आउट भी कर चुका है, वो 10 साल बाद भी उस वहम को अपने माइंड में सोच के बैठा है कि आज के बाद ये चीज दोबारा नहीं करनी क्योंकि मुझसे नहीं होता। ये भी एक थिंकिंग का मैलएडैप्टिव पैटर्न। और क्या है? मेंटल फिल्टर। हम कहते हैं ना कि जैसे जो लोग पीपल हु आर इन लव, तो अगर आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हैं तो आपको दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है, आपको लगता है कि सब कुछ मेरे आसपास बहुत अच्छा है, सब खुश हैं, सब चीजें ब्यूटीफुल हैं, लोगों का कलर वाइब्रेंट हो गया है, क्योंकि अंदर से आपने इंटरनली वो खुशी को, एक हैप्पीनेस है। सिमिलरली जो लोग कई बार उनका आजकल दिन ठीक नहीं चल रहे हैं फॉर सम रीजन, एक मेंटल फिल्टर है। हम फिल्टर, जैसे हम चाय छानते हैं और हम चाय छानते टाइम वो जो पत्ती है उसको अलग कर देते हैं और नीचे से जो चाय का लिक्विड है वो पानी अलग कर देते हैं दूध मिलाने से पहले। ऐसे ही हमारी दिमाग में एक छन्नी, एक फिल्टर है। कभी कभी कई लोग ऐसे, उनकी सोच ऐसी बन जाती है इतने सालों से कि उनको हमेशा जब आसपास सब कुछ बहुत अच्छा भी हो रहा है ना, वो नेगेटिव चीजें ढूंढते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जिंदगी में जब बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा हो, आपको डर लगना शुरू हो जाता है, चीरोफोबिया, कि अब कुछ बुरा होने वाला है? एक होता है ना कि जिंदगी में नजर लग जाती है, एक वहम है कि आपको लगता है बहुत अच्छी चीजें हुई है तो पक्का कुछ बुरा होगा। तो वो एक मेंटल फिल्टर है। कोई आपके पास एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, हो सकता है कभी एक आधी बार हुआ हो, बट अब आपने उस चीज को अगेन पकड़ लिया है। तो जब बहुत 100 चीजें अच्छी हुई हैं, वो जो सबसे नेगेटिव चीजें, अगर आप उसको पकड़ के बैठ जाएं और वो खुशी बाकी चीजों को आप एंजॉय ना करें, या आप इस वहम में बैठ जाके देखा मैं वेट कर रही हूँ कि कुछ बुरा होने वाला है, वो आपका अपना मेंटल फिल्टर है। वो आपका इनअप्रोप्रिएट मैकेनिज्म है जो कि एक सिंगल नेगेटिव इवेंट पे फोकस करना और पॉजिटिव चीजें इग्नोर करना, वो भी एक मेंटल अनहेल्पफुल थिंकिंग पैटर्न है। नेगेटिव बायस का मतलब क्या है? कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप ही हर बार, जैसे कि हमने अभी बात की है, नेगेटिव चीज पे ही फोकस करते हैं और पॉजिटिव चीजों को, चाहे आपके पास आज के दिन में 10 अच्छी चीजें हुई हैं, हम उनको भूल जाते हैं। अच्छी चीजों को हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। वो जो एक पूरे दिन में नेगेटिव चीज हुई है, आप उसको पकड़ के बैठ जाते हैं कि वो क्यों हुआ, और आप बार बार सोचते हैं कि वो क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया, अगले ने ऐसे क्यों बिहेव किया। चाहे गलती किसी की भी ना हो, वो एक सिचुएशन बेस्ड चीज थी, वो हो गई, उसको पकड़, हम कहते हैं ना, एक रस्सी को अगर आप टाइट पकड़ोगे तो उससे रस्सी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट खून किसके हाथ से निकल रहा है? आपके हाथ से। तो अगर आप माइंड में ऐसे नेगेटिव चीज को पकड़ के बैठे हो, तो आप अपने ही माइंड को डैमेज कर रहे हो, आप अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हो, अपना पीस ऑफ माइंड खराब कर रहे हो। बिकॉज जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं थी, जो एक्सटर्नल थी, वो तो चीज हो गई,
हो सकता है आप किसी से गुस्सा है किसी बात को लेके, उस पर्सन ने वो चीज अनइंटेंशनली बोली हो, उसको तो याद भी नहीं उसने एक्चुअली ऐसी बोली, बट आप उस बात को पकड़ के बैठ गए हैं। तो ये हमारे दिमाग में क्या है, नेगेटिव बायस है। कौन सी चीजों को, जैसे कि मैंने बताया, दिन में अगर 10 में से 9 चीजें ठीक हुई हैं, वो जो नेगेटिव चीज है, बुरे एक्सपीरियंस को पकड़ के बैठना। फिर डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव, जैसे मैंने बात की, अगर हम पिछले 10, 20, 15 सालों में जाएं या पिछले 40, 50 सालों में भी जाएं, हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कई बार, क्योंकि हमारा खुद का मन खराब है, तो हम क्या करते हैं कि हमने जितनी भी जिंदगी में अच्छी चीजें की हैं, हम उन सारी चीजों को याद नहीं रखते। बट कभी कभी होता है रात को सोने से पहले आपका दिन अच्छा नहीं गया है, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में पिछले 10 सालों में जितनी भी नेगेटिव चीजें हुई है ना, वो एक एक करके आनी शुरू होती हैं। आपने क्या डिसीजन ठीक लिए, गलत लिए, किसने आपको रिजेक्ट किया, तो आप क्या करते हैं, आप कभी भी उन चीजों की लिस्ट नहीं बनाते, आप ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाते कि आपके साथ अब तक क्या अच्छा हुआ। हमारी एक ह्यूमन बिहेवियर, हम प्रोग्राम भी ऐसी है, ये हमारे अंदर सिस्टम में है कि अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, हम ऑटोमेटिकली प्रोग्राम है कि हम अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को हमेशा याद रखते हैं। उसका रीजन क्या, वजह क्या है, हम क्यों याद रखते हैं? बिकॉज वो जो एपिसोड था वो बाय इटसेल्फ इंपॉर्टेंट नहीं था। ऐसा क्यों है कि पिछले 10-20 सालों में हमें सिर्फ कुछ चीजें ही याद हैं, बाकी याद नहीं है? ये मेमोरी भी विद टाइम कम हो जाती है, बट उसका एक और वजह ये है कि आपने उसके साथ एक इमोशन अटैच किया हुआ है। अब आपको अच्छी चीजें क्यों याद आती हैं, आपने पॉजिटिव इमोशन अटैच किया है, बट वो नेगेटिव चीज याद नहीं है क्योंकि शायद आप डर गए थे वहां उस सिचुएशन में। जैसे कई लोग ऐसे हैं, जैसे बचपन में अगर वो स्विमिंग पूल गए और वो डूबने वाले थे, अब वो उस टाइम जब छोटे थे वो डूबने वाले थे, अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि वो छोटे थे। अब इतनी बड़ी एज के आने के बाद भी अगर अभी भी पानी से डर लगता है, तो क्यों डर लग रहा है? तो आप बड़े हैं, आपको पानी से डर नहीं लगना चाहिए, पर आप कौन सा इमोशन नहीं भूल पा रहे? हेल्पलेसनेस, आप कुछ कर नहीं पाए, आप छोटे थे, वो घबराहट, वो डर आप में रह गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एपिसोड हैं हमारी लाइफ में जिसके साथ हमने एक इमोशन अटैच किया हुआ है। अगर हम उस इमोशन को कट कर लेंगे तो हम इमोशन, वो एपिसोड हम भूल जाएंगे। तो ये इसका मतलब क्या है, हम नेगेटिव चीजों को, रिजेक्शन को हमेशा याद रखते हैं, और हमारा बायस है कि हम पॉजिटिव चीजों को याद नहीं रखते हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए, हमें अपनी सिर्फ पॉजिटिव एक्सपीरियंस को रोज याद करके लिस्ट बनानी चाहिए। नेक्स्ट है जंपिंग टू कंक्लूजन। इसका मतलब क्या है, कई बार कुछ हुआ भी नहीं है, कुछ जनरल सी 2-4 चीजें हुई है, हम अपने मन में जो भी हमारे सामने इंफॉर्मेशन थी, हम अपने दिमाग में कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं बिना चेक करे कि एक्चुअली वो चीज हुई थी या नहीं। जैसे कई लोग हैं, उनको शक की बीमारी है, कई बार वो आपके सामने जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप एकदम सोच लेते हैं अपने मन में कि हाँ उस पर्सन ने जरूर ऐसा बोला होगा। आपने एविडेंस नहीं चेक किया, शायद आपको किसी और ने आके बताया कि उसने ऐसी चीज बोली है, बट क्या आपने खुद से चेक की? नहीं। क्या आपने एक बार उस पर्सन को बेनिफिट दिया कि नहीं नहीं, मैं इस पर्सन को जानता हूँ, ये पर्सन ऐसा नहीं बोल सकता? तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास थोड़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है और हम अपने मन में पहले से ही एक कंक्लूजन ड्रॉ करके बैठ जाते हैं कि ये चीज मुझसे नहीं होती। आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आई, आपको तो उसको जंप करना चाहिए सोच के कि हाँ भाई ये चीज मुझे मुझे कुछ लर्न करने को मिलेगा, कोई नया एक्सपीरियंस होगा, शायद हम कहीं नई जगह जा रहे हैं, कोई हो सकता है जैसे कई बच्चे पहली बार घर से हॉस्टल में आए हैं, तो क्योंकि घर में प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट था, वो ये नहीं सोच रहे कि हम नई सिटी जा रहे हैं, नए लोगों से मिलेंगे, नए एक्सपीरियंसेस होंगे, नया कोर्स होगा। वो घबराना शुरू करते हैं और वो पहले से सोचते हैं जी इस काम को हाथ नहीं लगाना, इस बारे में सोचना नहीं है। क्यों? अपने दिमाग में ऑलरेडी सी कंक्लूजन ड्रॉ की हुई है, चाहे वो लोगों पे शक करने की बात हो या कोई काम ना हाथ लगाने की, क्योंकि आपको डर और घबराहट है। तो कई बार ऐसा होता है हम अपने मन में बहुत सारे काम ऐसे नहीं करते बिकॉज हमारी जो अपनी मेंटल थॉट प्रोसेस है वो ही हमारी लिमिटेशन है। उसके अलावा मैग्निफिकेशन, आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जब उनकी लाइफ में कोई परेशानी आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ उस बारे में सोच सोच के इससे पहले कि वो प्रॉब्लम आई भी नहीं है और हुई भी नहीं है, वो अपने दिमाग में वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करते हैं, उस चीज को बहुत बड़ा करके एग्जैजरेट करते हैं। आपने देखना होगा कि कई लोग, अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास को देखें तो चींटी को भी अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे तो वो बहुत बड़ी दिखती है साइज में। तो कई बार कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती, शायद आप किसी और से शेयर करेंगे तो वो आपको उसका अच्छा और इजी सोल्यूशन बता देंगे, बट क्योंकि आपको ज्यादा सोचने की आदत है तो कई बार आप ऐसा करते हैं कि आप उस चीज को, जितना की वो परेशानी है नहीं, उससे कुछ ज्यादा ही उसके बारे में सोच के उस चीज को बड़ा बना देते हैं, ड्रामेटिक बना देते हैं और सोचते हैं कि ओ माय गॉड अब मेरे साथ क्राइसिस हो रहा है, अब तो दुनिया खत्म होने वाली है, क्योंकि मेरे से ये वो काम कर भी लेते हैं और आपको बाद में लगता है अच्छा चलो ये तो काम हो गया, ये तो प्रॉब्लम थी। ऑल्सो इमोशनल रीजनिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी लाइफ में कितने सारे डू दैट आई, मैं
आपको एक स्टेटमेंट दूं, आई शुड डू दैट, मुझे क्या करना चाहिए जिंदगी में। कितने लोग ऐसे हैं जब वो सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं कि वो चीजें उनके मन में खुद से आई हैं या उनको किसी और ने बोला है। जैसे हम जब बड़े होते हैं, कई बार हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि लड़कियों को ठीक से बैठना चाहिए, घर वालों के सामने तमीज से बिहेव करो, आप अपने घर जाओगे तो ऐसे बिहेव करना, या लड़कियां बाहर रात को अंधेरे में नहीं जाती, सेफ नहीं है। या कई बार अगर आपके साथ कोई इंसल्ट भी कर रहा है, आपके पेरेंट्स आपको अच्छी सोच देके कहते हैं कि आपको सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। द प्रॉब्लम इज कि जो सारी, जैसे कई बार सोसाइटी में ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बना लिए हैं कि हमें रियलाइज नहीं होता, बट तब वो हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाते हैं। प्रॉब्लम यही है। अच्छा, कितने बच्चे आजकल के जमाने में बच्चे प्रोग्रेसिव हैं, वो नहीं रिलीजन फॉलो करते, घर पे मंदिर उतना नहीं जाते, मस्जिद या कहीं भी गुरुद्वारे नहीं जाते, वो बुद्धिज्म फॉलो करना चाहते हैं, उनकी सोच और हो गई है, वो लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन अलग थी, बच्चों की जनरेशन अलग है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब हम अपने ऊपर एक लिमिटेशन डाले थे ना कि नहीं मुझे ऐसे ही बिहेव करना है, मुझे ऐसा ही सोचना चाहिए, कई बार हम लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस को मिस आउट कर जाते हैं बिकॉज वो जो हमारे साथ शुड स्टेटमेंट है और हमें क्या करना चाहिए, वो हमारी खुद की सोच नहीं है, तो शायद हमें किसी और ने इतने सालों में वो चीज इतनी बार बोली है कि हमने उसको मानना शुरू कर दिया कि हाँ जी हमें करना चाहिए। जैसे सोसाइटी हमें बहुत सारी चीजें ऐसे कहती है कि आपको इस तरीके से बिहेव करना चाहिए, तो वो चीजें हम उसको बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए हम उसको करना शुरू कर देते हैं। जैसे मेंटल हेल्थ की बात करें, अगर हम इंडिया में ही देखें, हम कितनी बार बात करते हैं कि लोगों को लगता है कि आप साइकेट्रिस्ट के पास ना जाओ, आप एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, या आपकी अगर मेरे पास टाइम होता मैं आपको वीडियोस दिखाती कि जैसे बीबीसी ने आके हमारी कंट्री में वीडियोस बनाए कि राजस्थान में हनुमानगढ़ में ऐसे मंदिर हैं जहाँ लोगों को पेशेंट्स को लगता है कि उनको कोई उनके अंदर स्पिरिट आ गई है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से ऐसे फेस कर रहे हैं, तो लोग साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते। तो ये जो शॉर्ट स्टेटमेंट है, ये कोशिश करके लोगों की बात ब्लाइंडली ना फॉलो करते हुए अपना दिमाग लगाना चाहिए। तो कई बार ये चीज हमें परेशानी दे रही है, क्यों? क्योंकि लोग दुनिया कुछ और हमसे चाहती है, बट हम कुछ और करना चाहते हैं। लेबलिंग, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, क्योंकि आपकी सोच एक तरीके की है, तो आपको लगता है क्योंकि आप बहुत ऑनेस्ट है, अब सोचने की ओ माय गॉड लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा कैसे बिहेव कर सकते हैं। आपको ये समझने की जरूरत है कि उनकी जिंदगी है, आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने फैसले, अपना इमोशन, अपना रिएक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, बट आपके आसपास जितने भी लोग हैं आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाए। ठीक बात है? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ओके, तो इसके अलावा और इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए? पर्सनलाइजेशन, हर चीज का ब्लेम अपने ऊपर डालना, जल्दी से गिल्टी हो जाना, क्योंकि शायद बचपन से आपको आदत रही, आप ऐसे एनवायरमेंट में रहे हैं कि आप हर चीज का ब्लेम अपने ऊपर लेना शुरू कर देते हैं कि मेरी ही गलती होगी, मैंने ही कुछ ऐसा बोला होगा। जरूरी सोचिए, एकदम इजिली से अपोलोजाइज कर देना, सॉरी बोल देना, जैसे मैंने बोला, छोटी सी एपिसोड को कई बार लोग इस सिचुएशन है, आपके साथ, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मेरी ही गलती होती है। फॉलो ऑफ फेयरनेस, क्योंकि आप बहुत ऑनेस्ट है, तो आपको लगता है कि दुनिया में आसपास सब लोग बहुत अनफेयर है, आपके साथ बुरा हो रहा है, चीजें ठीक नहीं है, लोग कुछ तरीके से चीज करनी चाहिए, वो उस तरीके से उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपना रिएक्शन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑनेस्ट हैं, आप सेल्फ रिस्पेक्टिंग हैं, आप गलत काम नहीं करेंगे। आप अज्यूम करके बैठ जाते हैं कि दुनिया में लोग सब गलत ही कर रहे हैं, अब उनका नजरिया समझने की कोशिश नहीं करते। पॉलिसी ऑफ चेंज, आपको लगता है, कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि मैम मैं घर में नहीं रह सकती, मैं तो ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, कनाडा जा रही हूँ, मैं वहां जाकर ठीक हो जाऊंगी। ये सोचना कि मैं किसी नई जगह जाके, या मेरी लाइफ में अगर कोई पार्टनर आ जाए, कोई बेटर आ जाए, या मेरी अच्छा हस्बैंड, फ्रेंड, वाइफ मिल जाए तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। क्योंकि आप ये रियलाइज कीजिए कि अगर आपके मन में कोई वहम, कोई परेशानियां, या आप अपसेट रहते हैं, या आप खुद डिप्रेस्ड हैं, कोई और आके आपको कैसे ठीक कर पाएगा, या आप कोई नई जगह चले जाएंगे तो वो दुनिया, वो जगह, वो सिचुएशन आप किसी और के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डाल सकते हैं? क्योंकि किसी और जगह जाने से, किसी और के साथ होने से आपके अंदर आपकी सोच तो नहीं चेंज हो रही। एंड बीइंग राइट, जैसे मैंने बोला है, कई लोगों में आदत है कि अब अपनी अपनी सोच है, कई लोगों को लगता है कि जो मर्जी हो जाए, आपको ठीक चीज का ही साथ देना चाहिए।
कई लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे लोगों की मदद करने की जरूरत है, चाहे वो गलत भी हो। करते हैं लोग कि नहीं ये हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमें इनके साथ रहना है, तो हम कोई बात नहीं, हम इनको सपोर्ट करेंगे। कई लोग उल्टा सोचते हैं कि नहीं गलत जो चीज है वो गलत ही है, वो ठीक नहीं हो सकती। तो 4 चीजें फाइनली कंक्लूजन में मैं आपको बताना चाहूंगी, जो चीज आप इसको अगली बार आपके अगर कोई भी चीज आपको लगता है कि आपने इसके साथ आइडेंटिफाई किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, थॉट रिकॉर्ड। अगली बार ये नॉर्मली थेरेपी में हम करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करता है। आप सिचुएशन नोट डाउन करिए, किस सिचुएशन में आपके दिमाग में ये थॉट आया, क्या हो रहा था, कौन आपके पास खड़ा था, आपका उस टाइम मूड क्या था, आपको सैडनेस थी, गुस्सा था, आपको एंजाइटी थी, आपके दिमाग में क्या उस टाइम थॉट आया, और आपके पास क्या प्रूफ है कि जो आप सोच रहे हो वो ठीक है, और क्या प्रूफ है कि वो चीज ठीक नहीं है। हो सकता है कि वो सिर्फ दिमाग में आपका थॉट आया हो। जैसे मैंने बताया, अगर आप किसी और फ्रेंड से पूछेंगे तो वो कहेगी नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने तो ऐसे ही कुछ कैजुअली बोल दिया था, तो तुमने उसके बारे में सोचा। या जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि आपकी फ्रेंड साथ से निकल के गई है और उसने आपको हाई भी नहीं बोली, तो आपको लग रहा है कि पक्का मैंने कुछ बोला है, या देखो मेरे साथ कैसे बिहेव करिए। अब ये बेनिफिट नहीं दे रही कि हो सकता है कि वो अपनी ही दुनिया में बिजी और उसकी कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो कई बार एक अच्छा आइडिया है कि आप एविडेंस ढूंढे कि क्या जो आपको लग रहा है वो आप ही को लग रहा है कि बाकी लोगों को भी लग रहा है। और अगर वो वाकई में और लोगों को नहीं लग रहा, तो एक बार सोच के देखिए कि लोगों को क्यों नहीं लग रहा। एंड ऑल्टरनेटिव थॉट सोचिए कि थॉट क्या रीजन हो सकता है, उस गर्ल ने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया, वो इसलिए शायद वो बिजी है, उसकी कोई टेंशन है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, वो आज बीमार है। एंड आप देखेंगे कि एकदम आपका दिमाग शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आपको किसी चीज से बहुत डर लग रहा है, हम कहते हैं डी कैटास्ट्रोफाइजिंग। इसका मतलब क्या है, तो सबसे वर्स्ट चीज अगर आपको सोचने की आदत है ना कि मेरे साथ हमेशा बुरा ही होगा, कोई बात नहीं, भागिए मत, सोच लीजिए। अगर आप उस चीज को वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो को सोच लेंगे ना, तो आप एटलीस्ट शायद अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पाएंगे। हो सकता है वो चीज होने नहीं वाली है, चलो अगर आपके दिमाग में एक वर्स्ट सिनेरियो आया भी है, ये डरने की जगह की नहीं नहीं मुझे नेगेटिव नहीं सोचना, वो नहीं करना। आप सोच लो और फिर ये सोच लो कि उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। हो सकता है कि पहले से मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना, जब वो प्रॉब्लम आएगी आपको फायदा ही कर जाए शायद। देन कुछ हम कई बार पेशेंट्स को स्टेटमेंट देते हैं ये चेक करने के लिए कि उनके दिमाग का वहम है क्या वाकई में वो चीज है। जैसे कई लोगों को अगर हम प्लीज स्टेटमेंट दें कि आई एम अ फेलियर, कि मेरे से जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा, ये आपका अपनी सोच है या लोगों ने आके बाकी आपको बोला है। हो सकता है किसी ने आपको कभी ना बोलो, ये तो आपकी अपनी सोच है। अच्छा कई लोग ऐसे हैं जो देखने में बहुत सुंदर है पर उनको लगता है नहीं आई एम वेरी अगली, आई एम नॉट अट्रैक्टिव, इसलिए लोग मेरे से बात नहीं करते हैं। हो सकता है रियलाइज ना करो वो शायद लोग आपसे इंटिमिडेट हो रहे हो। तो ये फैक्ट है या ओपिनियन है। आपकी अगली स्टेटमेंट है आई सेड नो टू अ फ्रेंड इन नीड, आपने किसने आपको हेल्प मांगी आपने मना कर दिया। तो ये आपको परेशान कर रही है चीज, ये आपको अपने माइंड में आपको चेक करना है कि क्या आपको चीजें अगर ट्रबल करी है फैक्ट की ओपिनियन की। कई लोग ऐसा सोचते हैं आई एक्सेप्ट एवरीथिंग, कि मेरे साथ जो भी होता है कुछ मेरे से कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये क्या आपको लगता है वाला बड़ा आपको लग रहा है कि मेरे से नहीं अच्छा हुआ, तो चेक करो एक बार अच्छे से लॉजिकली चेक करो कि शायद आपकी ओपिनियन है या लोगों को लग रहा है या नहीं। और लास्ट पार्ट है, हम कहते हैं जैसे एक कोर्ट में एक ट्रायल चलता है, एक जज है एक लॉयर है, कभी कभी एक अच्छा आइडिया मेंटली अपने लिए लॉयर बनना कि जो चीज आपके दिमाग में आई है क्या ये सोच वाकई में ठीक है या नहीं। पिछली बार अगर आपके साथ ऐसा हुआ था, शायद पिछली बार आपके साथ इसलिए हुआ क्योंकि आपका रिएक्शन कुछ और था, आपके साथ ये दोबारा चीज हो रही है, आपको लाइफ लेसन सिखा रही है कि इस चीज को बंद करो, इस नेगेटिव सोच को बंद करो, कुछ और ट्राई करो, कोई और प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका ढूंढो। अपने आप का लॉयर बनना और अपने आप को डिफेंड करना कि आपने वो चीज क्यों की और अगली बार आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इज अ गुड आइडिया। अपने माइंड में एक मेंटली कोच बैठाना इज अ गुड आइडिया। ब्लाइंडली ये मत सोचो कि गलती आपकी है आप लूजर है, नहीं, एक बार लॉजिकली सोच के देखो कि हो सकता है कि आपका बेस्ट था, इससे बेटर आप नहीं कर पाए, जो आपके पास हाथ में सिचुएशन थी। आप राइट साइड पे डायग्राम देखेंगे जो मैं दिखा रही हूँ, सेंटर में क्या है, थिंग्स आई कैन कंट्रोल, मेरे शब्द, मेरे एक्शन, मेरे आइडियाज, मेरी एफर्ट कितनी है, मेरी क्या गलती है, मेरा बिहेवियर है, सिर्फ और इतना ही एरिया मेरे कंट्रोल में है। क्या चीज में कभी भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लोगों का बिहेवियर, तो क्या वर्ड यूज करना चाहते हैं, वो आपके साथ क्या गेम्स प्ले कर रहे हैं, उनका बिहेवियर क्या है, उनके आइडिया क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी फीलिंग क्या है। अगर आप जिंदगी में ये लेसन सीख जाएं तो और आप चीजें कंट्रोल करना की आदत छोड़ दें और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें कि आप कैसे रिएक्ट करना चाहते हैं, आपकी आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्होंने वही करना है जो उनका करने का मन है, शायद आप खुद एनलाइटनमेंट पहुंच जाएंगे लाइफ में। लास्ट पार्ट, कोशिश करिए अगली बार अगर कोई थॉट आए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रही हूँ, एक बार उसको लॉजिकल तरीके से चेंज करके सोच के देखिए। अगर आपको लगता है दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट हैज हैपेंड, कि आपके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है,
हो सकता है आप उसको सोच के देखिए, ठीक है अगर ये ना होता शायद मैं ये लेसन ना सीखती, हो सकता है आपने कोई लेसन सीखा हो जो अगली बार आप, अगर वो आपके साथ ना होता तो आप कभी ना सीखते। अगर सेकंड लगता है तो पेनफुल, आई हेट इट, कि अगर मुझे कुछ काम करना पड़ रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरे से हो नहीं पा रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप सोच के देखिए कोई बात नहीं, अभी परेशानी दे रहा है, हो सकता है इसके बाद शायद मैं कुछ इंप्रूव कर जाऊं, मेरी कोई ग्रोथ हो जाए, कुछ नया, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाए। अच्छा अगर कभी कभी लगे कि मेरे साथ हमेशा चीजें बुरी हो जाती हैं, मैं कुछ कर नहीं पाती उनके बारे में, तो आप उन चीजों पर फोकस करिए, जैसे कि मैंने अभी बताया, वो क्या चीजें आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं, आपका रिएक्शन। अगर कोई बुरी तरह बिहेव कर रहा है, बदतमीजी दिखा रहा है, आपके साथ कुछ हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपके हाथ में तो आपका रिएक्शन, आप उस पर चले जाइए। ऑलवेज कंट्रोल, आप मत चलाइए, उसकी तरह मत बनिए, आप सेम रिएक्शन मत दीजिए। लास्ट पार्ट, अगर आप हर चीज के बारे में आपको बहुत ज्यादा सोचने की आदत है, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं सारा दिन, आप अपने आप को क्या लेसन दीजिए कि मैं अपने दिमाग को कंट्रोल करूं, मेरा दिमाग मुझे कंट्रोल ना करे। तो डिसिप्लिन्ड माइंडसेट के टुवर्ड्स कोशिश तो करनी चाहिए, ठीक बात है ना। तो विद दिस आई वुड लाइक टू फिनिश माय प्रेजेंटेशन। उम्मीद है कि हमने आज जितने सारे थॉट प्रोसेसेस डिस्कस किए हैं, आपको किसी ना किसी टाइम पे लाइफ में, अगर आपने इसमें से कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, अगली बार आप अपने आप को कॉन्शियसली कोशिश करेंगे कि आप इस चीज को रिपीट ना करें, क्योंकि कल को अगर आपको हर्ट है, डिसअपॉइंटमेंट है या डिप्रेशन है, खुद की अपनी सोच की वजह से तो नहीं होनी चाहिए ना। जो चीज एक्सटर्नल फैक्टर्स को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अगर आप इन चीजों पे वर्क कर लीजिए, अगर आपकी इनमें से कोई भी थॉट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन था, नेक्स्ट टाइम उसको प्रोडक्टिवली पॉजिटिवली सोच के उससे वर्क करना, यही आपका एम होना चाहिए। और जैसे कि हमने बात की कि बहुत बार ऐसा होता है दैट जैसे कि मैंने डिप्रेशन के सिम्टम्स बताए, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, बाइपोलर की बात की, क्या कॉजेज वजह हैं, क्या टाइप्स हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन नहीं लगी हो, आप अगली बार यू कैन स्प्रेड इट टू योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, और किसी को हेल्प की जरूरत है, प्लीज रीच आउट टू दैट पर्सन एंड स्प्रेड मेंटल हेल्थ। थैंक यू सो मच। एनीवन, एनी क्वेश्चन? थैंक यू सो मच मैम। एक क्वेश्चन है मनमीत की तरफ से कि इज persistent डिप्रेशन क्योरेबल और नॉट? यस मैम, इट इज। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपकी माइल्ड लेवल ऑफ डिप्रेशन है तो आप थेरेपी ले सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं। आपकी, जैसे मैंने आपको अपने एग्जांपल्स दिए, आपकी कोई सोच है जो आपको परेशान कर रही है, कोई प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। बट अगर सीवियर डिप्रेशन है, बेसिकली उसकी वजह से ब्रेन में जो केमिकल कम हो गए हैं, जैसे मैंने बताया, विटामिन डी के लिए सप्लीमेंट है, डायबिटीज की दवाई है, सिमिलरली फीवर की है, जो आप मेडिसिन लेंगे, क्योंकि केमिकल की वजह से वो सिम्टम है, वो 100% क्योरेबल है जब तक आप दवाई खा रहे हैं, चाहे आपको 6 महीने 1 साल खानी पड़ता है, डिपेंडिंग आपको डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है। दे आर एब्सोल्युटली दे आर वेरी वेरी क्योरेबल कंप्लीटली। जी थैंक यू सो मच मैम। आज आपका जो ये लेक्चर था, ये इतना एलाबोरेटिव और इतना नॉलेज प्रोवाइड करके गया है हमें कि हमारी जो थॉट प्रोसेसेस है, दैट इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ आवर ओन पर्सनालिटी। अगर हम अपनी थॉट प्रोसेस को बैलेंस्ड रखते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी हम लोग रख सकते हैं। और मुझे लगता है कि सभी पार्टिसिपेंट्स जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस लेक्चर से कुछ ना कुछ सीख के अपनी थॉट प्रोसेस जो है उसको बैलेंस्ड जरूर बनाएंगे। और आगे की प्रोसीडिंग्स के लिए हम चलते हैं डॉक्टर वनिका के पास। ओवर टू डॉक्टर वनिका नकल। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. you, ma'am. Session is open for interaction. Ma'am, it was very wonderful session. Thanks a lot, ma'am, for this very informative session, as depression is seen very often today, Yes. and it is a major disorder and a serious mental illness that negatively affects how you feel, the way you think, and how you act. Thank you, ma'am, for this information and the various ways of overcoming depression. Thanks a lot, ma'am. Thank you so much, ma'am, for this wonderful feedback, and I hope it has been beneficial and fruitful. और आप लोग ये एक लेसन सीख के जाएंगे कि कहीं ना कहीं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को छोड़ के आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है on how you take charge of your life. Definitely, ma'am. ठीक है, We have to work out on this. Yes, thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Everyone, thank you.